Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today our topic is isomerism and its types. Isomerism is an important feature of an organic compound. Here we will discuss in detail what is isomerism and its types and its examples. What is isomerism? Iso mean same, merism mean composition या फिर बनावट. What is isomerism? We define isomerism as the organic compounds having the same molecular formula but different structures are known as isomers. If we see here, there is 2 points mentioned. First one is molecular formula and second is structural formula. What is molecular formula? Molecular formula is a type of chemical formula that tells us about the actual number of atoms of an element present in a molecule. And what is structure formula? Structure formula is a type of a chemical formula that tells us about the actual arrangement of atom of an element present in a molecule. तो हम इस तरह से फिर आइसोमरिज्म को डिफाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा हो मगर इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं. दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमरिज्म और इस प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म कहते हैं. In other words, the organic compounds having the same molecular formula but different arrangements of carbon atoms in them are known as isomers. हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है मगर उनमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं. Now we'll see the classification of isomerism. Isomers are classified into two main classes. First class is structural isomerism and the second class of isomer is stereoisomerism. If we talk about the first class of isomers, that is structural isomerism, it is further divided into the 6 main types. Structural isomerism, the first class of structural isomerism is chain isomerism. Second one is positional, third functional, fourth ring chain, fifth metamerism, and sixth one is tautomerism, isomerism. And if we talk about the second class of isomers, that is stereoisomerism, stereoisomerism is further classified into two main classes. The first class of stereoisomerism is geometrical isomerism and the second class of stereoisomerism is optical isomerism. Now we will discuss structural isomerism. Actually, structural isomerism is further classified into 6 types: chain isomerism, positional isomerism, functional group isomerism, ring chain isomerism, metamerism isomerism, and tautomerism isomerism. Now we will see the detail of each type of structural isomerism. The first type of structural isomerism is chain isomerism. As its name represents chain. Here word chain mean the nature of the carbon chains, and we will define chain isomerism as the compounds that have the same molecular formula but they differs in the nature of carbon chain is known as chain isomerism. Actually, if we talk about the nature of carbon chain, the carbon chain may be either straight or may be branched. For example, if we talk about butane, butane is a family member of an alkane family, has two isomers. ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4. All these 4 carbons are connected in series with each other and form a straight chain. तो हम इस straight chain को कहते हैं एन ब्यूटेन. Now if we see here, in this case 3 carbon atoms are connected in series but 4 carbon atom is present at the कार्बन नंबर 2 फॉर्मिंग अ ब्रांच, एक ब्रांच बना रही है और कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों आइसोमर्स को, तो इनकी कंपोजिशन सेम है, क्या है, C4H10. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है मगर इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कहेंगे, ये आइसोमर्स है. और कौन से आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है, क्योंकि इनके अंदर जो नेचर ऑफ कार्बन चेन्स है वो डिफरेंट है. यहाँ पे स्ट्रेट कार्बन चेन है और यहाँ पर ब्रांच कार्बन चेन है. इसी को
इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मजीद यहाँ पर मॉलिक्यूलर मॉडल्स दिखाए गए हैं। क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक बॉल्स हैं और बड़े साइज की बॉल्स हैं ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो स्मॉल और व्हाइट कलर की बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन एटम्स की को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो कार्बन एटम्स हैं ब्लैक बॉल्स को जो रिप्रेजेंट की जा रही हैं, ये आपस में एक सीरीज में एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो कनेक्टेड है, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेट चेन बना रही हैं और इसको एन ब्यूटेन कहते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखें 1 2 3 3 कार्बन जो है वो तो स्ट्रेट चेन में ही है, मगर जो एक कार्बन है वो कार्बन नंबर 2 पर जो है वो ब्रांच बना रही है। तो इस तरह हम इसको कहते हैं एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। Now we will see the second type of structural isomerism, and second type is positional isomerism. As its name reflects, positional mean position. We define positional isomerism as the compounds which have the same molecular formula but they differs in the position of the same functional group is known as positional isomerism. यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा मगर उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। फंक्शनल ग्रुप एक जैसा ही होगा मगर उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ब्यूटीन अल्कीन फैमिली का एक मेंबर है। ये जो ब्यूटीन है ये पोजिशनल आइसोमरिज्म का फिनोमेनन को जो है वो शो करती है। हियर वी विल सी वन ब्यूटीन या ब्यूट वन इन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्यूटीन का मतलब होता है 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन 1 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वन ब्यूटीन कहेंगे। अब अगर हम यहाँ बात देखें तो यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन 2 पे मौजूद है 1 2, तो इसको हम कहेंगे 2 ब्यूटीन। ये नहीं देखें जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 पर है। तो हम यही कह रहे हैं ऐसे आइसोमर्स जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो तो हम उसको कहते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म। Now we will see another example of positional isomerism. 1 chlorobutane. Butane mean 4 carbons 1 2 3 and 4। 1 क्लोरो मतलब क्लोरो जो है वो हेलोजन फैमिली से है और जो इसका यहाँ पर ये एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है। 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब है कि क्लोरो जो है वो कार्बन एटम्स 1 पर मौजूद है 1 क्लोरोब्यूटेन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका सेकंड जो आइसोमर्स है। अब देखें 1 2 3 4 यहाँ पे कार्बन 2 पर जो है वो हेलोजन मौजूद है। क्लोरो हेलोजन का जो मेंबर है वो कौन है क्लोरो। यहाँ पे क्लोरो पहली पोजीशन पे है, कार्बन पहली पे है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन एटम पे क्लोरो मौजूद है। इसको हम कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको कहते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन्स। अब देखें बाकी जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है क्लोरो, यहाँ पे सेकंड पे मौजूद है। अब अगर यहाँ देखें तो हम कहेंगे कि 1 2 3 3 पे आएगा तो 3 क्लोरोब्यूटेन होगा, तो 3 क्लोरोब्यूटेन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फिर हमें नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट कर देनी होती है जहां पर इसे कम से कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को। तो फिर 1 2 ये 2 पे होगा। ठीक है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को शो करते हैं। अगर हम इसकी सेकेंड एक और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे दी हुई है डाइक्लोरोबेंजीन 1 2 डाई, ये 1 पोजीशन ये 2 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये भी डाइक्लोरोबेंजीन ही है मगर देखें जो दूसरे वाले क्लोरो ग्रुप है हमारा ग्रीन बॉल से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है वो कार्बन नंबर 2 की बजाय कार्बन नंबर 3 पर है, तो हम इसे क्या कहेंगे 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे है 2 क्लोरो जो ग्रुप एटम्स हैं वो यहाँ पे अटैच है, एक 1 पोजीशन पे और एक 4 पे, 1 2 3 एंड 4, तो हम इसको क्या कहेंगे 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन सब में जो है वो 2 क्लोरो जो है एटम्स जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मगर इनकी पोजीशन जो है वो सेकंड वाले क्लोरो की डिफरेंट है। यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 3 पे और यहाँ पे 4 पे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो मगर उनके अंदर जो है पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज हो तो हम उसे क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नाउ वी विल सी द फर्स्ट third type of the structural isomerism, that is functional isomerism. The same molecular formula but differs in the nature of functional group। यानी अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है मगर उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होगा। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं।
अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें C3H6O2, ये हमारे पास है मालिकुलर फार्मूला दो आइसोमर्स का। प्लस हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका मालिकुलर फार्मूला C3H6O2 है। इस मालिकुलर फार्मूला से हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स आ जाते हैं। फर्स्ट आइसोमर इज प्रोपेनिक एसिड एंड सेकेंड इज मिथाइल एथ्यूनेट। अगर हम प्रोपानोइक एसिड की बात करें एंड मिथाइल एथ्यूनेट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास है ईस्टर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि मालिकुलर फार्मूला दोनों आइसोमर्स के सेम है, मगर फर्क कहाँ है फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिल और यहाँ पे ईस्टर है। COOH आप पीछे पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप में कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल है और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ईस्टर है C++O, और R दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं ईस्टर्स। यानी अब इन दोनों आइसोमर्स की जो टाइप है वो कौन सी है फंक्शनल आइसोमरिज्म, यानी इनके जो मालिकुलर फार्मूला है वो सेम है मगर इनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज है। Now we'll see the further examples of the functional group alcohol and ethers. यहाँ पर जो ब्लैक बॉल्स हैं, बड़े साइज की बॉल्स हैं, ये रिप्रेजेंट्स कर रही हैं कार्बन एटम्स को, और ये जो स्मॉल वाइट कलर की बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट्स कर रही हैं हाइड्रोजन को, और ये जो रेड बॉल है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है CH3CH2OH। अब ये देखें फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसका ताल्लुक किससे है अल्कोहल से। अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये ऑक्सीजन एटम है, इसके दोनों तरफ CH3 यानी अल्काइल ग्रुप है, तो इसका ताल्लुक किस फैमिली से है ईथर से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो दो आइसोमर्स हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम है मगर इनके में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH और यहाँ पर है O के दोनों तरफ दो अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्कोहल एंड ईथर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ये हमारे पास कार्बन, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कार्बन जो बहुत है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्लैक बॉल्स कार्बन एटम्स को। CH3CH2 ये हमारे पास जो है रेड बॉल ये ऑक्सीजन को, और ये देखें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये चीज ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये किसका फार्मूला है C डबल बॉन्ड O H। ये एक तरफ H है हाइड्रोजन है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो इसको क्या कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ बात करें कार्बन ये जो बॉल्स हैं ये उसी तरह सेम जो है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, व्हाइट जो है वो हाइड्रोजन को एंड रेड जो है वो ऑक्सीजन को। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका ताल्लुक जो है वो कीटोन से है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है CH3 इसको हम क्या कहते हैं कीटोन। अब यहाँ देख सकते हैं 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन जो है वो 6 है और O। ठीक है, अब इनका मालिकुलर फार्मूला सेम है मगर इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो हम इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ये पीछे भी हम कर चुके हैं एसिड एंड ईस्टर्स के CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ईस्टर है। जब हमने बात की C डबल बॉन्ड OO के अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हों तो हम इसको क्या कहते हैं ईस्टर्स। तो ये अब ये हमने तमाम एग्जांपल्स देखी हैं, ऐसी देखी हैं जिसमें दो या दो से और ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मालिकुलर फार्मूला तो सेम है मगर इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम इस तरह के आइसोमरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। Now we'll see the next type of structural isomerism, that is metamerism isomerism. These two or more compounds that have the same molecular formula but they differs in the nature of alkyl groups attached to the same functional group. यानी functional group के दो जो अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे होगी वो डिफरेंट होगी। हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। डाई इथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब यहाँ पर आप देखें डाई इथाइल ईथर की बात करें, डाई मीन दो होता है, इथाइल दो इथाइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, और ईथर का मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखिए दो कार्बन है, ये इथाइल ये भी इथाइल, तो ये डाई इथाइल है। अब दोनों का दो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के दोनों तरफ मौजूद है, तो इसको कहते हैं डाई इथाइल ईथर। अब यहाँ पर हमारे पास ये CH3 क्या है मिथाइल, CH2 तो ये क्या है प्रोपाइल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन है जबकि ऑक्सीजन के दूसरी तरफ जो है वो 3 कार्बन है, तो हम ये क्या है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। जब हम अगर नेमिंग करेंगे तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और ये क्या था डाई इथाइल ईथर। अब देखें यहाँ पे अनइक्वल जो है वो कार्बन एटम्स की तादाद है जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पर दोनों तरफ दो है मगर अगर यहाँ बात करें तो एक तरफ एक है और दूसरी तरफ 3 जो है वो कार्बन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट डिफर्स इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी जो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप से उनकी नेचर जो है वो डिफरेंट होती है।
तो जो ईथर्स की फैमिली है वो मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म को शो करती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिंग चेन आइसोमेरिज्म, the organic compounds which have the same molecular formula but it differs in the modes of linkage of the carbon atoms. कार्बन एटम्स की कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल की, तो हमारे पास देखें यहाँ पर थ्री कार्बन हैं, ठीक है, और ये है प्रोपीन, या डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है वो अल्कीन फैमिली से इसका ताल्लुक है, प्रोपीन थर्ड मेंबर, सेकंड मेंबर सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे आए तो यही तीन कार्बन हैं, ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन की तादाद को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, 6 यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मगर यहाँ पर जो है वो C3H6 का जो फार्मूला है वो है साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मालिकुलर फार्मूला तो एक जैसा है, मगर रिंग कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम सॉरी कनेक्टिविटी और या लिंकेज एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर स्टेट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को जिसमें आइसोमर जो है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर उनका जो है वो लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स का डिफरेंट है, तो इस चीज को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। Now we will talk about the sixth type of structural isomerism is tautomerism isomerism. The same two or more compounds that organic compounds that have the same molecular formula but they differs due to the because it exists in dynamic equilibrium with each other. It can be present in many forms such as nitroform, AC form, कीटो फॉर्म एंड इनोलिक फॉर्म। एक्चुअली ये होता है बेटा इसमें टाटोमरिज्म में कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, बट यहाँ पर जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन है, प्रोटोन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तब आपको समझ आएगी। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास नाइट्रोफॉर्म दी गई है CH3 CH2 NO डबल बॉन्ड O O माइनस। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो है ये ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये हाइड्रोजन जब जाएगी तो क्या करेगी, ये हाइड्रोजन एटम जो है ये यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा और होकर क्या करेगा, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो जाके इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगी। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस चीज़ को यानी जिसमें अब इस जिसमें हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स का है, तो हम ऐसे आइसोमरिज्म को टाटो आइसोमरिज्म कहते हैं। मोस्टली अमाइनो एसिड में ये फिनोमेनन बहुत ही प्रोमिनेंट है, उसमें अक्सर टाटोमरिज्म होती है। उसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स का में से एक जो हाइड्रोजन है अमाइनो उसमें से वो शिफ्ट हो जाता है अमाइनो ग्रुप में, यानी उसमें जो अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप का H हाइड्रोजन होगा वो जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अमाइनो में, NH3 प्लस बन जाएगा और COO माइनस। और इनको ज्वीटर आइंस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो होते हैं वो एक साल्ट के अंदर ही होते हैं, तो इस चीज को हमको ज्वीटर आइन भी कहते हैं। Now we will talk about the stereoisomerism, the second class of isomers. This type of isomerism differs in the spatial arrangement of atoms or groups, यानी स्पेस में इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स की बात करेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल। Here in our book of second year class, just geometrical isomerism is given in detail and we will see the detail of geometrical isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। द सेम मालिकुलर फार्मूला एक जैसा होगा, रिप्रेजेंट्स टू और मोर कंपाउंड्स। इट डिफर्स इन द स्पेटियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड्स। We may define in another way compounds which possess the same structure formula but differs with respect to the position of identical groups in space are known as geometrical isomerism, and geometrical isomerism is also known as cis-trans isomerism.
हम इसको सिस और ट्रांस आइसोमर, स्पेटिकल अरेंजमेंट को होता है अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस। तो हम इस तरह ये कहते हैं कि बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्पेस में एटम और ग्रुप्स। Class, we are discussing about geometrical isomerism. Firstly, we define what is geometrical isomers, and then we see that geometrical isomers is also known as cis trans isomers. यानी geometrical isomerism का सेकंड नेम जो है वो cis trans isomerism भी है। अब हम देखेंगे कि geometrical isomerism को cis trans isomerism क्यों कहते हैं। Actually, two carbon atoms joined by a single bond are capable of free rotation about each. कार्बन कार्बन एटम जो आपस में सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं। However, when two carbon atoms are joined by a double bond, जब कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, they cannot rotate freely, ये फ्री रोटेट नहीं कर सकते। As a result, the relative positions of the various groups attached to these carbon atoms get fixed and give rise to the cis-trans isomerism. यानी सिस ट्रांस आइसोमर्स वो होते हैं जिनके ये जो इनके साथ ग्रुप अटैच होते हैं, इनकी पोजीशन जो है वो स्पेस में फिक्स हो जाती है क्योंकि वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते और इस तरह से वो सिस ट्रांस आइसोमर्स देते हैं। अभी पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लास, we talk about that geometrical isomerism is possible only when carbon-carbon bond is joined by a double bond and they cannot rotate freely. कैनॉट रोटेट फ्रीली मीन रिस्ट्रक्टेड रोटेशन, यानी जो इनकी रोटेशन है वो रिस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, अब क्या रीजन है क्यों ऐसा हुआ है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स कैन इजीली रोटेट व्हाट अपीयर्स टू बी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन एन एल्केन इज नॉट, यानी फ्री रोटेशन होने की वजह से इनकी डिफरेंट पोजीशन नहीं होती। ड्यू टू द वे स्ट्रक्चर्स आर रिटन आउट दे आर दी सेम, जिस तरह भी स्ट्रक्चर लिख लें वो सेम ही होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मॉडल दिखाया गया है। ये बेटा आप यूं कंसीडर करें, ये जो ब्लैक बॉल्स हैं ये कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, व्हाइट बॉल्स हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो ग्रीन बॉल्स हैं आप ऐसा समझ लीजिए कि ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। आप इसको मिथाइल भी कंसीडर कर सकते हैं, एनी हाउ आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर पोजीशन है, अब यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट होगी। अब जब ये रोटेट करेगा तो देखिए ये वाली जो पोजीशन है वो यहाँ आ गई, तो ये सेम है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर हम सल्सर जो है वो रोटेट करते रहते हैं। फिर ये जब दोबारा रोटेट करेंगे तो ये जो इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह ये देखें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये मुसलसल रोटेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर ये सारे सेम कंसीडर होते हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर द सेम, एक जैसे ही हैं बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैव फ्री रोटेशन, ये जो है वो फ्री रोटेट होते मतलब मूव करते रहते हैं, उसकी पोजीशन जो चेंज होती रहती है, मगर हम इनको सेम ही कंसीडर करते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं रखते जैसा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। इसका मतलब ये है कि एल्केन जो है ना वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करती। Class, we are discussing that geometrical isomerism is shown by the alkene family because there is a condition that there should must be present कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो जो उसकी रोटेशन होगी वो रिस्ट्रिक्ट होगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से यानी फ्री मूवमेंट नहीं होती जिसकी वजह से जो ग्रुप्स और एटम्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है स्पेस में, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वो भी कह सकते हैं, आपको क्वेश्चन शॉर्ट भी आ सकता है, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हम ये कहते हैं द नेसेसरी and the sufficient condition for a compound to exhibit geometric isomerism is that the two groups attached to the same carbon must be different. First ये जो है वो सेकंड कंडीशन है, यानी फर्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, और सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास टू ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अब वो किस तरह से देखें, ये हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ब्लैक बॉक्स जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स यहाँ पर अटैच होंगे उनको डिफरेंट होना चाहिए। इसी तरह फिर जो दूसरी कार्बन है इसके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच है इसको भी डिफरेंट होना चाहिए। टू डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड। अब हम देखते हैं, देखिए ये कार्बन है, इसके साथ एक ग्रीन है, मतलब एटम को दिखाया गया है, फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, इसका मतलब है ये शो करे, लेकिन दोनों कार्बन को देखना है। यहाँ पर भी देखें ये जो है वो
फंक्शनल ग्रुप है और ये दोनों आपस में तो सेम है, मगर इस कार्बन को हमने देखना है कि ये दोनों डिफरेंट हो और इसके भी ये दोनों डिफरेंट हो। हाँ, इस कार्बन के और इस कार्बन के सेम हो सकते हैं, मगर इन दोनों को एक ही कार्बन पर मौजूद दोनों फंक्शनल ग्रुप, इसको भी डिफरेंट होना चाहिए और इसको भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन पूरी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं, तो इट्स मीन इट विल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये दोनों सेम है, दोनों ही ये भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। Once you get two similar atoms and groups attached to one end of a carbon-carbon double bond, you cannot have geometrical isomerism. Even कि आप एक साइड पर भी एक कार्बन के साथ भी दो एक जैसे ग्रुप्स हैं, इट्स मीन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, यानी ये ग्रीन बॉल इसी रिप्रेजेंट की किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप, ये भी सेम है ये भी। अब यहाँ पर हालांकि डिफरेंट है, लेकिन नहीं, अगर एक भी कार्बन के साथ दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे, एटम्स होंगे या ग्रुप्स होंगे, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, जिसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखिए, ये रेड से शो किया, यानी ऑक्सीजन समझ लें या इसको क्लोरीन समझ लें, कुछ भी समझ लें, इसको ब्रोमीन समझ लें, और ये हाइड्रोजन है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकती है, इसलिए डिफरेंट मतलब कलर्स की बॉल से रिप्रेजेंट किया गया। तो इसका मतलब है इस कार्बन पर भी जो टू एटम्स और ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, और इस कार्बन के साथ भी जो अटैच हैं एटम्स और ग्रुप्स दोनों ही डिफरेंट है, तो इट विल आल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इस तरह ये दो कंडीशंस हैं इस के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। Class, now we will discuss about the geometrical isomerism that is further classified into two class: cis isomer and trans isomer. Cis isomer is defined as the isomer if the same groups are on the same side of the double bond, then it is called cis isomer. यानी अगर हमारे पास जो ग्रुप्स अटैच है कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड के एक साइड है, दोनों ही, जैसे ये है मिथाइल ग्रुप, तो हम इसको कहते हैं सीस। ये हाइड्रोजन को ले लें या मिथाइल को ले लें, ये भी एक साइड पर अटैच है, या ये भी जो ग्रुप्स है वो एक ही साइड पे अटैच है, तो इसको हम कहते हैं सीस। इसी तरह अगर हम ट्रांस की बात करें तो ये देखें बेटा, यहाँ पर जो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये एक साइड पे नहीं है, जैसा कि अगर आप हाइड्रोजन को ले, ये इस साइड पे अटैच है और ये दोनों यानी ऑपोजिट साइड पे है, या अगर इसी की एग्जांपल यूं लें, मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड पे है, दूसरा मिथाइल दूसरी साइड पे है, तो इस तरह से हम ट्रांस को यूं कहते हैं if the same groups are on the opposite sides of the double bond, then it is called as trans isomer। तो फिर हम इसको ट्रांस आइसोमर कहते हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम मजीद ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट मजीद एक्सप्लेनेशन दी गई है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये, फाउंड इन सम बट नॉट ऑल एल्कीन्स। एल्कीन्स रिप्रेजेंट, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं कि वो जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो शो करते हैं, लेकिन बेटा याद रखना है आपने, ऑल एल्कीन्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द फिनोमेनन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, तमाम नहीं शो कर सकती, अभी हम वो भी पढ़ते हैं। सिस, तो सिस में भी हमने पढ़ा कि जो फंक्शनल ग्रुप है एक ही साइड पे होंगे, ग्रुप्स जैसे ये एक ही साइड पे डबल बॉन्ड के, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ये हाइड्रोजन एटम्स है एक ही साइड पे, जिसको हम सिस कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये ग्रीन बॉल एक साइड पे है, एक वाला फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा वाला दूसरी साइड पे है, तो ये जो है ये किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कौन सी टाइप है? ट्रांस। ये सिस है हमारे पास और ये ट्रांस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ब्यूटीन का, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें 2 ब्यूटीन है। अब यहाँ पर देखें ये दो इसके साथ मिथाइल ग्रुप है वो एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में, जबकि हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड के एक साइड पे, तो ये क्या है हमारे पास सिस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप एक साइड पे डबल बॉन्ड के, ये उसकी दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे, तो ऑपोजिट साइड्स पे है तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। अगर हम आ जाए 1 ब्यूटीन की बात करते हैं, तो 1 ब्यूटीन जो है वो, जैसा कि अभी हमने कहा कि दो कंडीशंस का होना जरूरी है कि एक कार्बन के साथ दोनों जो बॉन्डेड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो, तो ये जो है वो 1 ब्यूटीन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि इसके साथ ये जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं एक ही कार्बन के साथ वो जो है वो सेम है, इधर भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, या इसको, ठीक है, इस तरह से एक भी कार्बन के साथ अगर होंगे, यहाँ पर भी देख लें ये कंडीशन है कि एक कार्बन के साथ दोनों जो बॉन्डेड एटम है वो हाइड्रोजन है, या इधर दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब है 1 ब्यूटीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको रहता है, 2 butene can show geometrical isomerism while 1 butene not. What is the reason? Reason is that 1 butene cannot contain
या यूं भी आप कह सकते हैं कंटेन सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम्स, और या फिर आप यूं कह सकते हैं बिकॉज 2 ब्यूटेन कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम while 1 butene does not contain different groups, it contains similar groups, so for this reason it does not show geometrical isomerism. क्लास अभी हमने जैसा कि कहा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो है वो फ्री रोटेशन होती है, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड में जो है वो फ्री रोटेशन नहीं होती। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उस फ्री रोटेशन जो है वो रिस्ट्रक्शन होती है, उसमें नहीं होती। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अबाउट और अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, तो क्या रीजन? इसका मैं आंसर यूं देना चाहूंगी, क्या रीजन है, रीजन भी देखना चाहिए। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड में आप फर्स्ट ईयर क्लास में ये पढ़ चुके हैं सारी डिटेल, कि जो डबल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड अ पाई बॉन्ड से मिलकर बना होता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय अ साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से जो है वो बनता है, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल है उसके ओवरलैपिंग से बनता है, साइड पे ओवरलैपिंग से, ऑफ टू कार्बन एटम्स अबव एंड बिलो द प्लेन्स ऑफ द कार्बन एटम, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसके ऊपर और जो नीचे वाला प्लेन है वहां पर पैरेलल ओवरलैपिंग से जो है वो बनता है, साइड वे ओवरलैपिंग से। इफ नाउ वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड इज रोटेटेड, अगर डबल 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 बॉन्ड कार्बन एटम जो है वो आपस में ज्वाइन है, ठीक है, अब उनको हम रोटेट करने की कोशिश करवाते हैं। इफ नाउ वन ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर, यानी एक कार्बन को दूसरे कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उसके साथ रोटेट करने की कोशिश करते हैं, द पी ऑर्बिटल्स विल नो लॉन्गर ओवरलैप, तो इस तरह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ओवरलैपिंग नहीं रहेगी, एंड पी बॉन्ड शुड ब्रेक, इस तरह पी बॉन्ड को ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो साइड में ओवरलैपिंग है ना, तो जो ही हम रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो है वो फ्री रोटेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं। बट द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स रिक्वायर 251 किलो जाउल पर मोल ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, which is not provided by collisions of molecules at room temperature. मालिक्यूल जब रूम टेम्परेचर पर कोलाइड करते हैं तो यानी उस कोलाइजन से उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि बहुत जो है वो ज़्यादा अमाउंट है एनर्जी की, इट इज कॉस्ट टू मच एनर्जी, ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। कंसिक्वेंटली द रोटेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट फ्री, तो वो फ्री नहीं होगी, बट इज स्ट्रांगली हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रुक जाती है, वो नहीं हो पाती। वाइल इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली 12.55 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिर्फ 12.55 जो है वो हमें एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज डेटा फॉर इथेन मालिक्यूल की बात करें एट रूम टेम्परेचर, द कोलिजन ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल की जो कोलिजन होती है आपस में रूम टेम्परेचर पर 25 सेल्सियस पर, सप्लाई सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, तो वो इतनी एनर्जी होती है कि वो उस एनर्जी बैरियर को कम कर सकें और वो जो है वो रोटेशन कर सकें, तो इसलिए जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट कर लेते हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट नहीं करते। तो यही तो वजह है कि जब वो कार्बन बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाते तो उनकी पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई हो जाती है स्पेस में, और इसी वजह से जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी वो सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अच्छा क्लास, ये मैं क्वेश्चन आपको बता रही थी कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इसी तरह एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ आपको बताती चलूँ, जो कि आपकी बुक में है। वो ये है कि अक्सर ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, 2 ब्यूटीन कैन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट 1 ब्यूटीन नॉट। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको इसको रीजन, कि जो दो कंडीशन होना जरूरी है। सबसे पहले आपने ये बताना, देयर आर 2 कंडीशन नेसेसरी टू एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जो फर्स्ट कंडीशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दूसरी रीजन हर कार्बन जो है डबल बॉन्ड की उसके साथ जो अटैच ग्रुप है उनको डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 1 ब्यूटीन के सिलसिले में क्या है कि ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है बॉस, तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास शो नहीं कर सकती। देखिए अगर हम ये देखें, ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, अगर इसकी ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। जबकि यहाँ आ जाए इस 2 मिथाइल प्रोपीन में, तो यहाँ पर भी देखें जो दो कार्बन एटम्स हैं वो भी सेम है यहाँ पर, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच, और इस तरफ भी दोनों हाइड्रोजन एटम, तो ये भी जो है वो 2 मिथाइल प्रोपीन भी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जबकि 2 ब्यूटीन शो कर रही है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये कार्बन एटम है, इसके एक तरफ जो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ग्रुप जो है, यानी एक कार्बन के साथ अटैच एक हाइड्रोजन एटम अटैच है और दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है।
यहाँ पर आ जाए, ये एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल, तो दोनों एटम जो है वो डिफरेंट है। नो डाउट ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा सेम है, बट ये जो एक कार्बन के दो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से जो है वो 2 ब्यूटेन शो कर सकती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज में मौजूद है। तो क्लास ये तो था आज का हमारा टॉपिक, आइसोमरिज्म एंड इट्स टाइप्स। तो हमने देखा, हमने डिटेल में जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की को देखा, फिर उसकी टाइप्स देखी, उसकी एग्जांपल को देखा, और इस तरह से इस ट्रांस आइसोमरिज्म को देखा। तो ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको याद करें, इसकी एग्जांपल को समझें। जो समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। अच्छा क्लास, टुडे मोरल लेसन is that when you think you have tried everything and do not know where to turn, इसका मतलब ये है कि जब आप सोच सकें कि आपने हर चीज करनी थी जो आपकी ताकत में, वो आप कर चुके, ठीक है, आपने जो भी सोच सकते थे वो करने को वो कर लिया आपने, एंड डू नॉट नो वेयर टू टर्न। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम आप नहीं जानते कि आप कहाँ जाएं, किस जगह पर जाएं, यानी आपको कोई काम नहीं हो रहा, आपको सुकून नहीं मिल रहा, तो आप ये सोच रहे हैं आप कहाँ जाएं। अल्लाह हैज़ अ सॉल्यूशन। तो याद रखें बेटा, अल्लाह के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन, वो कोई भी चीज़ हो, वो ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, वो किसी भी फील्ड से रेलिवेंट हो आपकी ज़िंदगी का, तो जो अल्लाह के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के साथ देने वाली है। इसका मतलब यह है कि हमें नमाज की तरफ रुजू करनी चाहिए। देखिए अजान में है हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, और साथ ही कहा गया हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इसका मतलब है कि अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो हम कामयाब भी पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमें नमाज पढ़नी है। तो बेटा आपने जो है वो अल्लाह की तरफ टर्न हो जाए, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की तरफ गामजन कर लें, नमाज पढ़ें। बेटा नमाज पढ़ेंगे तो आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। आज का मेरा यही था मॉरल लेसन, अल्लाह हैज़ अ सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू क्लास, इसको पढ़ें और इसको ज़हन में रखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।